the mind control session. Even though the name is a little different, I thought why not to keep a name which is something connecting to accounts. So let us start. Okay. Now what is happening in the modern advanced society? क्या हो रहा है? Good advancement is happening. Technology is rapidly, advancing. Communication is becoming faster, smoother. We are using the technology called Zoom. So many things. GDP is growing up, but there are some things more which is also going up. कुछ और भी आगे बढ़ रहा है इस मॉडर्न सोसाइटी में. वो क्या है? वायलेंस, unemployment, murders, suicides, corruption, mental stress, rapes, divorce, drug addiction, and the list is unending. है ना? ये सब आगे बढ़ रहा है. फियर, हमने फियर नहीं डाला. मेंटल स्ट्रेस है. फियर इज डिफरेंट. कम्युनल वायलेंस ये बढ़ ही रहा है. पब्लिक अनरेस्ट. अब तो यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल, या जिसको कैपिटोल बोलते हैं, जो कांग्रेस वहां का है, प्रेसिडेंट हाउस, उसको भी नहीं छोड़ा. अंदर तो घुस गए थे ना पिछले बार, और अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ. तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया में या एशिया में हो रहा है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इवन अमेरिका, these things are happening. Many places this kind of situation is going on. Wars, India, China, going on. So many other nations getting on. नॉर्थ कोरिया ने फिर धमकी दिया अमेरिका को. So these things are just on and on and on. Terrorism. They all are steadily increasing every year. ये थोड़ा पुराना है, लेकिन very interesting. Interesting in the sense eye opener. Let's see what it says. What are the main problems society is facing today? First is crime. Second is lack of morality. US prison population. The graph is always going up. From 1980s, it's going up. Gun sales in America. That's why I said little old figure. अभी इसमें थोड़ा नया update करेंगे. Recently, when a lot of cases started increasing of students using weapons. School में जा रहे हैं, and few years back we know that one case which highlighted everything everywhere was one boy. He killed 37 people, teachers, security guards, and other students. Every other week we are seeing this happening in America. किसी ने गोलियां चला दी, पब्लिक को मार दिया. किसी ने चाकू से अटैक किया, पब्लिक को मार दिया. People are just dying. So then what is the solution? People were thinking. Government is thinking, what is the solution? So someone said that we should stop allowing guns to the kids. 10-10, 12-12 साल के हैं और उनके हाथ में बंदूक है. The mind is not so mature.
माइंड उतना मैच्योर नहीं है, लेकिन बंदूक है, थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है चला देता है। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछा क्या करे, तो किसी ने सजेस्ट किया कि जो गन सेल्स है उसको कम करो, बच्चों के हाथ में बंदूक मत दीजिए। सो जो गन बेचने वाले हैं, बंदूकें बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसकी सबके हाथ में बंदूक कंपलसरी करो। स्कूल में बच्चा जाता है, जैसे आईडी कार्ड है, ऐसे गन कंपलसरी करो। क्योंकि जब एक लड़के ने सबको गोलियां मारना चालू की, 37 पीपल ही किल्ड। अगर वहां पे दूसरे बच्चों के हाथ में भी बंदूक होती तो कोई उसको मार के शांत कर देता, तो इतने लोग नहीं मरते। लॉजिक देखिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 12-15 साल के लड़कों के हाथ में ये सबको कंपलसरी बंदूक देना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? मर्डर्स 5 साल में 124% rise. Average number of reported rape cases in South Africa is 33,000. These are reported cases. आप लोग को पता है, इंडिया हो अमेरिका हो, लोग हर चीज रिपोर्ट नहीं करते. They don't want to report. Before finishing school, an average child watches 8,000 murders, 100,000 acts of violence. Number of drug users increasing, 7.4 million. Number of divorces per 100 marriages is increasing. Average number of suicides in Japan every year, 22,500. Average number of attempted suicide in United States in a year, 650,000. Actually पूरे दुनिया में 12 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं. 12 लाख. 1 लाख हर महीने में सुसाइड्स हो रहे हैं. It's not a small number. So we should ask ourselves, are we really advancing in right direction? क्या यही एडवांसमेंट हम देखना चाहते थे? क्या यही हम अपने आने वाली जनरेशंस को देना चाहते हैं? क्यों इतना प्रॉब्लम है? Srila Prabhupada replied beautifully. He said, with a pack of dogs in the room, how can we expect peace? If you have a room and you put like 100, 200 dogs, they cannot be at peace. ऐसा नहीं कि चुप बैठ जाएंगे, सब अपने अपने सोचने विचार करने में लग जाएंगे. They'll start barking, they'll start biting each other, they'll kill each other. So why this is happening? Solution to all the problem is controlled mind. So let me ask you, तो अब आप देख रहे हैं everywhere there is negativity towards the solution. What do you think? चलो हमने बता दिया माइंड कंट्रोल होना चाहिए. ये तो अभी हम अगर अपडेट करेंगे इसको, so we'll be shocked. The amount of violence cases have increased in the US. फ्रांस में क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? चाइना में क्या हो रहा है? What about our neighboring countries? Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Everywhere same problems. Everywhere. It's not कि इस देश में तकलीफ हो रही, इस देश में नहीं हो रही. पहले ऐसा लगता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री एशिया में ही प्रॉब्लम हो रहा है. बट अब तो यूएस में, कनाडा में, वन ऑफ द पीसफुल नेशंस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सब जगह सेम प्रॉब्लम चालू.
because the population is same. The mind is acting in the same function, in a similar function. हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ का माइंड अलग काम करता है, यहाँ गर्म बोलते हैं ना, इधर गर्म खोपड़ी है, भेजा गर्म है। लेकिन अब तो यूरोपियन कंट्रीज, तो अमेरिका में, कनाडा में सेम प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? हमने माइंड के बारे में तो बताया, और आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? Yes. Anyone would like to share? What is your understanding? सुधीर प्रभु, प्रतीक प्रभु, आप लोग बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। The problem is with the mind. भगवत गीता में ये क्लियरली दिया हुआ है। What is the main problem? Krishna speaking about this. There are three modes of material nature. जैसे होता है ना, एयर कंडीशन में होता है मोड्स, या मोबाइल में होता है प्रोफाइल्स या मोड्स। तो ये मोड होते हैं, तीन मोड्स होते हैं या गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये आपने सुना होगा। सतोगुण इज मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। दिस इज द सिचुएशन। अब क्या होता है, जब मोड ऑफ गुडनेस बढ़ जाता है, then there is peace in the society, there is harmony, there is cooperation. But जब मोड ऑफ पैशन बढ़ता है, so everyone is like competing with each other. एक बोलते हैं ना, रेस, रैट रेस जैसा हो जाता है, they're just competing with each other. और जब तमोगुण, the mode of ignorance increases, people are actually ready to kill each other and actually they kill each other. There is no harmony, there is no cooperation. ये सब दिखावे का हारमोनी चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे हो कुछ ना कुछ, अभी भारत बंद, कितनी बार भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। We know the agitation happened around Delhi and what happened on 26 January. Now whether it is planned activity of some groups, some leaders, or it is just mode of ignorance and passion, डैमेज तो हुआ, नुकसान सबका हुआ। जो नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का हुआ उसको भरेगा कौन? पब्लिक ही भरेगी, क्योंकि टैक्स से कटेगा। आप आंदोलन कीजिए, लेकिन वायलेंस क्यों हो जाता है? बिकॉज माइंड, या तो आपके माइंड को किसी ने चीट किया है, या फिर आपका माइंड तमोगुण में है। So that is why all this is happening, and that's why it is said mind control. So we have to understand what is mind, who is mind. What is mind? We have a body which is made up of 5 elements. आपको मैं दिखाई देता हूं, so that before understanding the mind, let's answer the most fundamental question: who am I?
अभी मैं तो आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप लोग बोल ही नहीं रहे। अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड, यू नो, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हु आर यू, तो आपका क्या आंसर है? एम आई दिस बॉडी, एम आई दिस हेयर, हैंड, कोट, नोज, मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता। सो देन, यू नो, करीब 20th सेंचुरी के स्टार्ट में अनमोल जी बोल रहे ह्यूमन बीइंग, ओके गुड। तो एक साइंटिस्ट, व्हाट ही डिड, ही कैलकुलेटेड एवरीथिंग, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कितना कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑल अदर थिंग्स। सब बाजार में जब खरीदने गया तो 110 रुपए में। चलो महंगाई बढ़ गई होगी, पेट्रोल भी बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का रेट सबका हर चीज का बढ़ गया है, तो रॉ मटेरियल बढ़ गया होगा। 200 रुपए हो गया होगा, 300 हो गया होगा, 500 हो गया होगा, 1000 रुपए हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं। तो अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम एक बोरी है केमिकल, और वी आर मोर देन केमिकल्स। कृष्ण स्पीक्स इन भगवद गीता, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए, छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, and becomes mature, then gets married, have by product, धीरे धीरे उम्र हो जाती है, dwindle हो जाता है, and finish। पर शरीर तो बार बार ही चेंज कर रहा है ना। हमको लगता है सिर्फ मृत्यु के समय पे आत्मा जो है शरीर चेंज करती है, लेकिन आप खुद देखिए, जब आप छोटे से बच्चे थे, वो शरीर कहाँ पे अभी नहीं रहा, क्योंकि ये शरीर, जब ये नया शरीर आ जाता है, पुराना शरीर खत्म हो जाता है, फिर नया आया, फिर पुराना खत्म, फिर ये नया शरीर आया, पुराना खत्म। बट सोल इज सेम एंड दिस जर्नी कंटिन्यूस। एक लाइफ, फिर दूसरा लाइफ, फिर तीसरा लाइफ, फिर चौथा लाइफ, इट जस्ट कंटिन्यूस। एंड नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट ओनली, अभी ये सोल यहाँ पे निकल गया तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन में ही जाएगा। दिस सोल कैन गो इनटू एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स, ट्रीज, कहीं भी जा सकता है उसके कर्म अनुसार। तो रियली स्पीकिंग, when we say we are humans, actually that's not right. We are soul. We are not humans. We are soul. Now you see same person, but different clothes. But the person is same. Only clothes have changed, no? So similarly, the soul remains same. आत्मा वही रहती है, सिर्फ उसका क्या होता है कि शरीर बदलता है। आत्मा वही रहती है। अब देखते हैं माइंड कहाँ पे। So there is inferior material energy. God has unlimited energies. There is material energy, there is spiritual energy. So material energy में क्या होता है? क्रॉस एलिमेंट, जो ये बॉडी देख रहे हैं, बॉडी किस चीज का बना है? 5 चीजों का बनता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये पंच तत्व जिसको बोलते हैं। सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। And spiritual energy is Satchidanand. So right now we are focusing on mind. So mind is also material and soul is spiritual. Spiritual energy is superior and material energy is inferior. This should be clear. How the mind works. Mind is called as master of the senses. There are 5 senses. The master is mind. And mind has all the thoughts, desires, experiences, everything stored. And mind will tell the eyes, oh, ये देखा था ना, मजा आ गया था, अब ये फिर देखेंगे। ये गाना सुना था, बहुत अच्छा लगा था, ये गाना फिर से सुनेंगे। ये माइंड से,
फिर डिजायर्स है, ये माइंड से आ रही है. Ideally, the intelligence should come into picture and take the decision. See, mind can make a proposal. It's like man proposes, God disposes. So mind proposes, intelligence should dispose. Intelligence should decide, because intelligence is the decision maker. But ऐसा होता नहीं. Doesn't happen like that. It doesn't work like that. Mind सोचता भी है और डिसीजन भी ले लेता है, इंटेलिजेंस को साइडलाइन कर देता है. We'll see how to deal. Now, ये 5 horses, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ये 5 जो घोड़े हैं, ये 5 हमारे इंद्रियों जैसे. These are 5 senses. There's a rein, लगाम, घोड़े की लगाम, that is mind. And the driver is intelligence, and the soul is the passenger. When these reins या ये जो लगाम है, ये ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रहती है, तो क्या होता है? वो अपने मर्जी से चलता है और घोड़े कहीं भी निकल जाते हैं. घोड़े कहीं भी निकल जाएंगे. Now apply that. Soul is seated in the heart. Intelligence is also there, but mind is not listening to intelligence, and mind is going independent. तो सारे senses जो हैं वो भी अपने अलग से निकल जाते हैं, है ना? तो इसीलिए इंटेलिजेंस जो वीक हो जाता है, तो ये माइंड इंडिपेंडेंट हो जाता है. जब माइंड इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सेंसेस अपने हिसाब से चले जाते हैं. तकलीफ किसको होती है गाड़ी में? सोल को. सो हमको तकलीफ क्यों हो रही है? Because our intelligence has become weak and mind has taken control. माइंड जो है वो पूरा कंट्रोल ले लिया है, इंटेलिजेंस वीक हो गई है. Krishna explains in Bhagavad Gita, if mind is controlled, it is your best friend. If mind is uncontrolled, it will be your greatest enemy. तो आज हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माइंड. And why the mind is giving trouble? Because mind is not controlled. Mind has become independent. Mind versus intelligence is not the same. Please explain. Yeah, we'll come to that. I'll give 4 more examples. Okay, चलो यहीं समझाते हैं. So what is mind and what is intelligence? कई बार लगता है जैसे अनमोल जी पूछ रहे हैं, माइंड और इंटेलिजेंस से दोनों अलग अलग है. माइंड इज लाइक अ चाइल्ड. मन एक बच्चे जैसा है. वो कुछ भी देखता है ना, उसका इच्छा होता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. उसका इच्छा होता है. कौन दिलाएगा, कौन डिसीजन लेगा कि बच्चे के लिए ये सही है या नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है? दैट्स पेरेंट्स, है ना? बच्चा मार्केट जाएगा मम्मी के साथ और बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. हर चीज उसकी माँ नहीं दिलाती है. नॉट नेसेसरली कि मनी इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी, बट वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है या यूजफुल नहीं है तो नहीं दिलाती. फिर बच्चा क्या करता है? रोना चालू. और रोना चालू करता है तो कई बार पेरेंट्स को फिर झुकना पड़ता है, क्योंकि रोता है बाजार में जोर जोर से चिल्ला, अपना पूरा एनर्जी लगा देता है कि उसको पता है रोऊंगा तो मिल जाएगा.
नहीं रहूंगा तो ये लोग मेरे को पट्टी पढ़ा देंगे। तो रोने से सब मिल जाता है, तो रोता है, जोर जोर से रोता है। फिर आपको लगता है अरे कैसा बच्चा है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ले भाई ले ले, क्या थे, खिलौना चाहिए ले, वो भी थे वो भी ले, रो मत, इधर हमारा नाम खराब मत कर। हाँ, तो ये बच्चों को पता रहता है। लेकिन अगर आप बच्चे को जिद करने पे, रोने पे भी मत लेके दीजिए, वो चुप हो जाएगा। तो पता है इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, रोने से भी इन पे कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर बच्चा चुप हो जाता है। सिमिलरली माइंड होता है। माइंड क्या करता है, माइंड कुछ भी चीज देखता है उसको वो चाहिए, ही वांट्स। और माइंड क्या करता है, प्रपोज करता है। अगर इंटेलिजेंस वीक है तो जो माइंड बोलेगा वो हो। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो माइंड अपनी मनमार्जी नहीं कर पाएगा, माइंड उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जो उसको चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। ये मन जो है यही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो फिर कैसे डील करें। भगवान बोलते हैं गीता में माइंड के ऊपर बहुत अच्छा से दिया हुआ है। आप बिल्कुल पढ़िएगा, 6th चैप्टर भगवत गीता। मैंने आपको पहले भी बताया था माइंड का मैकेनिज्म, माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे माइंड को ट्रेन किया जा सकता है और टेम किया जा सकता है, पाला जा सकता है माइंड को। आज एक जंगली जानवर की तरह मन हो गया है हमारा, कि जो चाहिए वो देखता है, वो चाहिए और रोना लगता है, उसको वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, और हमको देना पड़ता है। कई बार आप बिजी होते हैं लेकिन माइंड आपको लेके जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन माइंड आपको मूवीज की तरफ लेके जाता है, पार्टीज की तरफ लेके जाता है, टीवी की तरफ लेके जाता है, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया की तरफ लेके जाता है, और आप चले जाते हैं। इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। कभी आपने देखा है, न चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हो लेकिन माइंड आपको उधर लेके जाता है। ये माइंड का सिचुएशन है, ये माइंड का पावर है। और माइंड को कौन कंट्रोल कर सकता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल द माइंड। बुद्धि जो है वो माइंड को कंट्रोल कर सकती है। आप कार चलाते हैं, मान लीजिए आप पीछे बैठे हैं, है ना, ओला ओला कैब में जा रहे हैं, आप पीछे बैठे और ड्राइवर का सडनली ब्लड प्रेशर लो हो गया तो ड्राइवर गिर गया। अब ड्राइवर गिर गया, आपका हाथ स्टेयरिंग तक पहुंच नहीं रहा है, क्या होगा, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, डेफिनेटली होगा। अब सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है, पैसेंजर को, यानी सोल को, हमें। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर ड्राइवर वीक हो गया है, उसका ब्लड प्रेशर नीचे चला गया है या उसका शुगर लेवल नीचे हो गया, तो ड्राइवर को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, फिर ड्राइवर उठेगा, वो स्टेयरिंग को कंट्रोल कर लेगा, और स्टेयरिंग सारे टायर्स को कंट्रोल करेगी और गाड़ी एकदम परफेक्ट। सो इंटेलिजेंस वो ड्राइवर है, इसलिए इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकर है। इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से इंटेलिजेंस हो गया वीक। आपके साथ हुआ होगा, एक बार नहीं बहुत बार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन माइंड बोलता है नहीं, मूवी देखना चाहिए।
आप कुछ और काम करना चाहते हो, लेकिन माइंड बोलता है नहीं, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। चीट कर देता है आपको, जो आप करना चाहते हो वो करने नहीं देता है। ये सिचुएशन है माइंड। होता है ऐसा आपके साथ? सबके साथ होता है। इसीलिए कहते हैं ना, बी डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड मतलब क्या है कि मन की मत सुनो। अब मन की सुनोगे तो कभी डिटरमिन्ड नहीं हो पाओगे। मन का सुनना छोड़ दो। डिटरमिनेशन बढ़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है, इंटेलिजेंस को कैसे शक्ति दें, कैसे ताकत दें, कैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं कि वो माइंड को कंट्रोल कर ले। तो इंटेलिजेंस को ये पावर, ये स्ट्रेंथ मिलता है नॉलेज से। हम जितना नॉलेज एक्वायर करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम है नॉलेज एक्वायर करना, जितना नॉलेज मिलेगा, जितना नॉलेज मिलेगा, उतना इंटेलिजेंस क्या होगा, पावरफुल होगा और वो माइंड को कंट्रोल कर लेगा। ये सिचुएशन है। तो अगर माइंड को कंट्रोल करना है, अनकंट्रोल माइंड क्या हमने बता दिया। माइंड को कंट्रोल करना है तो कैसे करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस का खाना, जैसे बॉडी के लिए हम खाना खाते हैं, दाल चावल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, चपाती, पराठे, सो ऑन सो फॉर्थ, सैलड, अचार, पापड़, चटनी, जो भी है, ये बॉडी के लिए। माइंड के लिए खाना क्या है? माइंड के लिए खाना है मंत्र और विचार करना, सोचना। इंटेलिजेंस के लिए खाना क्या है? नॉलेज एक्वायर करना और डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना नॉलेज के बेस। अगर आप मुझे बोलोगे प्रभु जी आप हाई कोर्ट जज बन जाइए और वहां केस चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, आप डिसीजन दीजिए, भाई मुझे कुछ नहीं आता लॉ के बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे डिसीजन लूं? तो इसीलिए जज होना चाहिए ज्यादा नॉलेजेबल। तो सबसे पहले तो डिसीजन लेने के पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज होगा तो आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव से चीजों को देख सकते हैं। नॉलेज होगा तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है माइंड बोल रहा है कि अभी मूवी देखो, लेकिन मूवी तो देख लेंगे, लेकिन इतना जो 2-2.5 घंटा हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो मैं पढ़ाई कर लूंगा, कल एग्जाम है। और मूवी देखने के बाद भी, मान लीजिए 2.5 घंटे की मूवी भी देखी, तो उसके बाद तो एनर्जी डाउन हो जाएगा। फिर बॉडी बोलेगा चलो सो जाओ, माइंड बोलेगा हाँ अभी रिलैक्स करेंगे। तो मूवी देखना भी तो रिलैक्सेशन था, नहीं अभी तो असली रिलैक्सेशन। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस को क्या देना पड़ेगा। अब अगर इंटेलिजेंस पावरफुल होगा तो बोलेगा नहीं, क्यों मूवी देखना है, जब पता है हमको कि कल एग्जाम देना है, उसके लिए अच्छी नींद की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। अगर तुमको लगता है तुमने पढ़ाई कर लिया तो अच्छे से सो जाओ ना, क्योंकि अभी सोओगे तो एग्जाम में नींद नहीं आएगी। अगर आप नहीं सोएंगे प्रॉपरली तो एग्जाम में नींद आएगी। आपने देखा ना, बहुत थक जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली आई डोंट नो, बट कुछ एग्जाम्स होते हैं ना जो दोपहर में होते हैं, स्पेशली लंच के बाद होता है, तो बहुत नींद आती है। लिखेंगे कैसे, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि पूरा ब्लड जो है वो पेट में इकट्ठा हो चुका है। ब्लड सर्कुलेशन इज अराउंड द स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड, सो द ब्लड इज नॉट रीचिंग टू द ब्रेन। तो सिमिलरली हमने बताया आपको, शरीर का खाना है, मन का खाना है, बुद्धि का भी खाना है, एंड दैट इज नॉलेज। दैट्स नॉलेज। तो इसीलिए हमको माइंड को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, एंड इंटेलिजेंस को हमको क्या देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ
कि माइंड इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग और राइट. माइंड इज कंपेयर्ड टू बी अ नाइफ, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि माइंड फ्रेंड बना लो, कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारा एनिमी. अरे एक ही व्यक्ति फ्रेंड या एनिमी कैसे हो सकता है? जैसे नाइफ है. अगर ये नाइफ एक डॉक्टर के हाथ में हो तो आपकी जान बचा सकता है, लेकिन अगर एक गलत व्यक्ति के हाथ में हो तो आपकी जान ले भी सकता है. सेम नाइफ, इट इज यूसेज, कौन यूज कर रहा है उसको. तो सेम माइंड है, बट अगर इंटेलिजेंस के पास प्रॉपर नॉलेज है तो माइंड को हमारे बेनिफिट के लिए ले जाएगा. लेकिन अगर इंटेलिजेंस को नॉलेज नहीं है तो माइंड को वो नीचे डुबा देगा. Anyways, all this is the result of uncontrolled mind and techniques of controlling mind. चलिए ये भी अभी दिखाते हैं. Do not allow the senses to wander stray in any direction they want. सबसे पहले तो जहां भी सेंसेस जा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से न जाने दीजिए, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए. स्पेशली जो गलत जगह है, आपको पता है कि ये गलत है, वहां पे अगर माइंड चला गया, वहां पे सेंसेस चले गए तो फंस जाते हैं. Engage the senses and mind in the topics of God. क्यों? Why God? Why not something else? Because transcendental knowledge या दिव्य ज्ञान आपको वहां से मिलेगा. Understanding the meaning of life by reading thought-provoking books like Bhagavad Gita. ये खाना है बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए. This knowledge and associate with. Why? Because devotees, they have controlled the mind, or they are on the path of controlling the mind. They think that the mind is a problem, because the people who are not devotees, they don't even think that mind is a problem. वो सोचते हैं ठीक है, मन का मौजी, मन का राजा. वो एक जगह भी लिखा हुआ था ना, आता है ना, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है. तो सरकार, आप तो मन की सुन रहे हैं ना. अभी आपने बोला मैं किसी की नहीं सुनता, अभी वही बोल रहे हैं जो मेरा मन कहता है, तो मन की सुन रहे हो आप ना. और मन कैसा है? एक बंदर के जैसा है, गुलाटी मारते रहता है, एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पैर से तीसरे पैर. दिन भर आप देखेंगे बंदरों को सिर्फ गुलाटी मारते, पता नहीं उनको क्या मिलता है. टू मच एनर्जी. तो हमारा माइंड में बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन जो है मशीन्स ने और कंप्यूटर्स ने और टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, तो हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं. करने के लिए नहीं तो माइंड, बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर. मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एसोसिएशन. Now, what is the recommended method for controlling the mind is loud chanting and hearing of Hare Krishna mantra. Even if the mind is diverted, it will be forced to concentrate on the sound vibration. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मन को सब जगह से निकाल लो. इधर से भी निकालो, इधर से भी निकालो, इधर से. प्रभुपाद बोलते हैं नहीं निकाल पाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा, मन को सब जगह से नहीं निकाल पाओगे. तो फिर क्या करें? मन को सही जगह पे लगाइए. देखिए एक एग्जाम्पल, अगर आप छोटा बच्चा है 3-4 साल, उसको बोलते हो बेटा कुछ मत करो, तुम शांति से बैठ जाओ, आपको लगता बैठेगा? मान लीजिए आपको, आपके कुछ रिलेटिव्स आए हैं, उनके साथ आपको बात करना है, या आपका फोन कॉल चल रहा है, या अभी आप ये सेशन अटेंड करने बैठे, हो सकता है आपके घर में कोई बच्चा हो 3-4 साल का, वो बैठेगा नहीं शांति? आप उसको बोलोगे चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि वो बच्चे का स्वभाव नहीं है खाली बैठना. तो फिर क्या करें? तो बच्चे को ऐसा कुछ खिलौना या ऐसा कुछ एंगेजमेंट दे दो, उसको कॉपी पेन दे दो, ले बेटा लिखते रहे ABCD, वो लिखता रहेगा. बिजी रखो उसको, इंगेज रखो. सिमिलरली माइंड है. अब माइंड को बोलोगे कुछ मत करो,
ध्यान करो, या तो वो सो जाएगा या तो वो भाग जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप माइंड को कहते हो कि चुप करके नहीं बैठ सकता, ठीक है, तुम कुछ एक्टिविटी करो, क्योंकि वो एक्टिविटी के लिए ही बना हुआ है माइंड। तो कैसे करो? कृष्ण के लिए कुछ करो, उसको कृष्ण के लिए कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, it isn't necessary to withdraw the mind from everything. It will be automatically withdrawn because it will concentrate on the sound vibration. So जब ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हमारा माइंड अपने आप लग जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आज कराएंगे आपको। जब माइंड कंट्रोल होगा तो क्या होगा? क्लियर इंटेलिजेंस, कूल माइंड, पीस, प्यूरिफाइड सेंसेस, बेटर कंसंट्रेशन, मेमोरी, मोर एफिशिएंट। तो ये हमारा सिचुएशन होगा। और सिर्फ अभी नहीं, ये तो अभी, अब ये मत देखिए, दूसरे रिलीजन भी देखिए। क्रिश्चियनिटी में क्या बोला गया? क्राइस्ट ग्लोरिफाइड लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग आवर फादर हु आर्ट इन हेवन hallowed be thy name. Guru Nanak ji, huh? In the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of true name. Muslims repeatedly chant the sacred name of God, Allah. Buddhists also repeat, Namo Amida Butsu. नमो अमिता बुत्सु, ये रिपीट करते रहते हैं। सिमिलरली इन सनातन धर्म इट्स कॉल्ड मंत्र। मंत्र मीन्स मन प्लस त्र, मंत्र, मंत्रायते इति मंत्र। So many people, look at this. Jean Claude, youngest director of 3M Incorporated in France, 29 years old. Everything started happening for me when I began chanting Hare Krishna. Albert Ford, owner Ford Motors, chanting Hare Krishna has made a tremendous impact in my life. Andy Desai, leading Indian industrialist. I have been chanting Hare Krishna for many years and I have never found anything more pleasurable. Rishikesh Mafatlal, chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. Look at the model. She is the model, and what she became after chanting Hare Krishna. Chanting helped me give up bad habits. It changed my vision of things. Again, another model. By starting to chant Hare Krishna, I feel tremendous happiness. Italy, chanting makes me feel close to God. Mahamantra significantly, okay, he's a researcher for studying the effects of chanting Hare Krishna Mahamantra. He has done all the PhD. Mahamantra significantly reduces stress, depression, and mode of ignorance, and considerably increases mode of goodness. When I'm stressed out, I chant. It's one thing which charges my battery, it clears my mind and brings back in focus. Chanting makes me more perceptive, in harmony with everything and around me. So what's happening? कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क लगता है। तो क्या करना चाहिए हमको? इंटेलिजेंस को एक तो एक्टिवेट करना चाहिए, इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा। दूसरा, ये मंत्र जाके माइंड को कंट्रोल करेगा। आज माइंड नहीं कंट्रोल होने की वजह से कितना एंजाइटी हो रहा है हमारी लाइफ। छोटी छोटी चीजों में दो लोग खिटपिट 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 चलते रहते हैं, तो माइंड कंट्रोल नहीं। So this is very important to understand that why we need to control the mind and how can we control the mind. क्योंकि अगर माइंड नहीं कंट्रोल किया तो किस डायरेक्शन में ले जाएगा हमको पता नहीं, बट डेफिनेटली डैमेज कराएगा। लेकिन अगर माइंड को कंट्रोल किया तो इट विल एक्ट लाइक आवर फ्रेंड, हमारा दोस्त बन जाएगा और जैसे हम चाहेंगे उधर उधर वो चलेगा, अल्टीमेटली गिविंग ऑल ऑफ अस द हैप्पीनेस व्हिच वी आर लुकिंग।
क्योंकि माइंड एक बार थोड़ा सही डायरेक्शन में लग गया ना, सही सेवा में लग गया, तो इधर उधर नहीं भागेगा। जब इधर उधर नहीं भागेगा तो आपके डिजायर्स नहीं आएंगे। आप इतने सारे मॉल्स देखते हैं, शोरूम्स देखते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारा डिजायर बढ़ता जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, माइंड हमेशा परेशानी में रह रहा है। लेकिन अगर डिजायर्स हम खत्म कर दें और भगवान के साथ डिजायर्स अपनी जोड़ ले, तो फिर क्या होगा? आप मार्केट में देख रहे हैं कपड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पानी का जहाज होता है, लाइक टाइटैनिक। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जहाज आ गए हैं, लेकिन वो पानी का जहाज डूबता कब है? जब पानी उसके अंदर आ जाता है, अनकंट्रोल्ड रूप से। अंदर तो पानी है, टॉयलेट बाथरूम तो है ना, पीने का पानी है, बट वो कंट्रोल्ड है। जब पानी अंदर आ जाएगा जहाज का, देखिए समुंदर इतना विशाल है, उसका पानी अगर अंदर आ जाए तो पूरा जहाज को खत्म कर। व्हाट इज अ शिप, सच अ स्मॉल थिंग। इतने विशाल समुंदर में एक छोटा सा शिप क्या कर लेगा? कुछ भी। लेकिन अगर आप पानी अंदर आने देंगे और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो ये पानी के जहाज को आपको डुबा देगा। सिमिलरली यू आर देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है। लेकिन नेगेटिविटी होने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिविटी होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होगी? जब वो संसार की नेगेटिविटी आप अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं, अपने घर में लेके आ रहे हैं, अपने अंदर लेके आ रहे हो, तब आप परेशान हो जाओ। कोरोना पूरे संसार में है, लेकिन अगर आप अपने आप को क्वारंटाइन रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक से हाइजीन रखते हैं, तो फिर कोरोना होते हुए भी आपके अंदर नहीं घुसेगा। आपके अंदर कब घुसेगा? जब आप हाइजीनिक नहीं हो, जब आप सफाई नहीं रखते, तब आपके अंदर घुसता है ना। तो ये हमको समझना चाहिए, देन ओनली वी कैन कंट्रोल माइंड। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? सर चैंटिंग हरे कृष्णा will help, right? Definitely it will help. मैं तो 16 साल से जप कर रहा हूँ, हेल्प तभी तो बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, यस सुधीर। प्रभु जी, एक माइंड में क्वेश्चन है। सो कई बार हम कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या वो है, तो हाउ वी कैन डिसाइड कि दिस इज द विश और दिस इज द डिसीजन ऑफ माय माइंड और इंटेलिजेंस। बिकॉज कई बार हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और कई बार गलत हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बोलने में क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई मतलब क्या होता है? जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वीक हो गई है, भ्रष्ट मतलब या तो नेगेटिव हो गई है, हाँ? तो उस समय माइंड अपने हिसाब से काम करता है। तो माइंड, इंटेलिजेंस आपकी कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड हो गई इंटेलिजेंस, या फिर भ्रष्ट हो गई, करप्ट हो गई, वायरस लग गया, तो फिर क्या होगा? फिर आपका माइंड अपने हिसाब से भागेगा। और यही जो हमने प्रॉब्लम्स बताई, ये प्रॉब्लम चालू हो, इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोच नहीं पा रहा है, सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है, डिसीजन सही नहीं ले पा रहा है ना। यही बोलते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जी। तो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए, या भ्रष्ट हो भी गई है तो हमको उसको वापस क्लीन करना चाहिए, by reading Bhagavad Gita, by hearing lectures based on Bhagavad Gita, talks based on Bhagavad Gita, और वो भी ऑथोराइज्ड सोर्सेज से, हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ सर, वो यस मेरा, गुरु। हाँ सर, वो मेरा को वो माइंड में कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब भी हम पढ़ने लगते हैं तो अलग
अलग अलग विचार आता था कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा बहुत सारा अटेम्प्ट लग चुका है सीए में, मल्टीपल अटेम्प्ट, सो माइंड में वो नेगेटिव थॉट आता रहता है सर। तो आपने जैसा बताया कि हर किसी को चैंटिंग करने का, तो मैं करूँगा। वेरी नाइस। सर एक तो रिक्वेस्ट है, आपका जो पीपीटी था क्या वो मिल सकता है? हाँ भिजवा देंगे, ठीक है भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। अनमोल जी, कैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगा? भगवत गीता पढ़ने से, इस तरह के लेक्चर सुनने से और चैंटिंग करने से। ये 3 चीजें सफिशिएंट है अभी स्टार्ट से। योर इंटेलिजेंस विल इंक्रीज। हम अभी आपके सामने कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना? आप सब लोग चैंटिंग कीजिए हमारे साथ और देखिए आपको उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आप में से कितने कितने डिवोटीज रोज चैंटिंग करते हैं? आप में से कितने लोग डेली चैंटिंग करते हैं? अनमोल, अतिरेक पारेख, सुधीर शर्मा, ध्रुव, प्रतीक पेशाने, वीना उमंग। आप में से कितने लोग डेली जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं? ध्रुव नहीं करते, वीना उमंग करती हैं, अनमोल नॉट डेली। तो ऐसे आप डेली करना चाहिए। और आप क्या देखेंगे जब आप चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसको सुनेंगे, ध्यान से सुनना है, बस सो नहीं जाना है, सुनना है। आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट। आपका माइंड काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। तो दैट विल हेल्प। ध्रुव पूछ रहे हैं कितना मिनट्स करना चाहिए? देखिए मिनिमम कोशिश करना चाहिए 15 मिनट तो अभी करना चाहिए मिनिमम। 2 माला, एक माला करने में 7 से 8 मिनट लगता है। एक माला मतलब एक राउंड, 108 बार हरे कृष्ण मंत्र को एक माला कहते हैं। तो कम से कम 15 मिनट से चालू करना चाहिए, आप में से जो भी नहीं करते। तो देन व्हाट विल हैपन कि वो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी देना चालू करेगा चैंटिंग, है ना? अनमोल जी प्रश्न पूछे, सर एक बात, कभी कभी लाइक अगर आप कुछ डिवोटी या कुछ ऐसे जगह जाते हैं लेकिन ज्यादा समझ नहीं आता और नींद आती है, मैं समझा नहीं। अनमोल जी सर आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ सर, मेरा मतलब ये है कि जैसे कभी कभार होता ना कि मैं एक बार इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश गया था, तो लेकिन लास्ट लेक्चर था वो, शायद इस कारण से मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा था, तो मैं उसको इतना ग्रैब नहीं कर पाया। और मेरे को थोड़ा मतलब जैसे वहां पे ना नींद सी आ रही थी। जैसे आपका तो क्लियर हो जाता है, मतलब ये तो एक लेवल पे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो लेकिन उनका जैसे उनका वो था, मैं कौन हूँ जो आपने बताया ना, उसी में शायद 5 क्लासेस थी और मैं शायद लास्ट क्लास में गया था उसमें। कोई बात नहीं, उस समय नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है ना? तो आप लोग चैंटिंग कीजिए। नेक्स्ट वीक विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चैंटिंग, यानी आप लोग का जो चैंटिंग आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हरे कृष्ण। हरे